بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام تمام خوش آمدید کا ہمارا اس آج کا ایپیسوڈ کے اندر۔ ناظرین کرام تمام آج اس پروگرام کا ذریعہ نہ تھا تھوڑی ایک بہت زبردست معلومات شیئر کرنا چاہواں جس تو مراد ہمارے جناب مائک کیسری صاحب ہمارا بچ بالکل موجود ہیں اور انہوں کا نال ماسٹر شوکت صاحب جڑا انہوں کا پوتا ہیں تے وہ موجود ہیں شوکت چوہان صاحب، پھر انہوں کا صاحبزادہ والدار کہ صاحب انسپیکٹر سکندر حسین صاحب مارنا موجود ہیں تے انہوں کے بارے بہت ہم نے نام سنیو کہ مائک کیسری جڑی بڑی مشہور اور معروف ایک شخصیات میں شمار کی ہو جائے نہ جموں کشمیر کے اندر تے مائک کیسری جڑا اس ٹائم گرام میٹھی تڑا تحصیل جڑی ہے یا رجوری ضلع رجوری جموں کشمیر الہند کے بیچ موجود ہے اور ہمارا اتنے یہ بارڈر علاقہ ہے جناب علی تقریباً کو 0 کلومیٹر جڑی ہے ایریو جنہیں بارڈر کے نال ہم تے انہوں نے بہت خدمات انہوں نے دیتی، لوگوں کی سپورٹ کری ہر طرح کی جنہیں جس لئے لوگوں نے لوڑ تھی اس کے بارے مزید گل بات جنہیں انہوں کا کارگاہ احباب جڑا ہیں یا موجود ہیں، ماسٹر صاحب موجود ہیں، انہوں کا والدار صاحب موجود ہیں، انہوں کو پوچھوں گا کہ انہیں کی خدمات نہیں کیونکہ مائی اور 100 سال تو اوپر ہیں یہ، جس کی وجہ تو انہوں کی قوت سماعت جڑی ہے اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس وجہ تو یہ سن نہیں سکتا، لہٰذا یہ اس کے بارے دسیں گا۔ ماسٹر صاحب تھارو ہم سواگت کریں آج کا اس پروگرام کے اندر تو تم دسیں گا دادی اور رنگ جنہیں کتنی عمر ہوئے گی اس لیے؟ جی سب تو پہلے تھارو بہت بہت شکریہ کہ تم اس طرح کی سٹوری کرن تک پجا کہ اس طرح کا بزرگ لوگ جڑا دور دراز علاقہ میں جنہوں کی کوئی اچیومنٹ ہیں جنہوں نے پبلک واسطے کوئی کام کیا ہے انہوں کا تم انٹرویو کرنے واسطے پوجے جنہوں لوگوں نے آج بھی میڈیا بھی نظر انداز کر چکے ہے۔ جی جی سر، تو یہ میری دادی ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نام کیسر بھی ہے اور مائی کیسری کا نام تو یہ مشہور ہیں، انہوں نے سب لوگ جانے اس نام تو اور انہوں نے کیوں جانے وہ آج ہم تم نے دسا۔ کیا بات ہے سر، تو 100 سال تو اوپر انہوں کی عمر جڑی ہے جی جی ہو چکی ہے، کیونکہ جس طرح یہ دسیں کہ 47 ماہ اس عمر میں تھی، اچھا اس سے نال ہم کیلکولیشن کریں کہ یہ 100 تو اوپر ہے۔ جی جی اور جس ٹائم ہم یہ بسیں آن گئے اس گراں کے بیچ جی جی بارڈر کے اوپر، ہاں جی تو یہ حالات یہ تھا کہ 90s میں ملٹنسی جڑی تھی کافی زیادہ تھی کیونکہ بارڈر ایریا تھا، ہاں جی سر، فینسنگ نہیں تھی بارڈر کے اوپر، ہاں جی اور آرمی کسی شک پر بھی لوگوں نے پوچھ تاچھ واسطے بلا لے جاتی، جی جی پٹائی بھی تھی لوگوں کی، ہاں جی اور اس ٹائم انہوں لوگوں نے سیو کرنا، اچھا انہوں نے شیلڈ کرنا، جی اکیلا ہی سوٹی لے گیا نکل جانو، اچھا آرمی آفیسراں کے سامنے کھڑو ہو جانو اور انہوں لوگوں نے بچا کے لے آنا۔ کیا بات ہے، اس دور کا یہ مطلب اچھا آئرن لیڈی کا نام پر بھی یہ مشہور ہویا۔ اچھا کس نام ہے؟ آئرن لیڈی، آئرن لیڈی، جی جی۔ اچھا اور مطلب جس کسی نے بھی کوئی تنگی آوے تھی جی جی انہوں نے لگی ہو کہ یہ بول چال آ ہے، اچھا یہ ہمارا بچہ نا پولیس کو بھی بچا لے گا، جی جی آرمی کو بھی بچا لے گا، جی جی کسی کو کوئی ڈسپیوٹ بن جائے اچھا انہوں نے اس پنچایت واسطے لے جائیں تھا، جی جی اور انہوں کی گل بڑی کھری ہاں اور جی بہت ہی ایماندار جی یہ تھا، مطلب فیصلوں بہت بہتر کریں تھا، جی جی اور اس سے وجہ نال اللہ نے انہوں نے اتنی عزت دیتی جی کہ آج بڑا تھی بڑا لیڈر جڑا ہے انہوں کے آگے کول بیٹھیں، انہوں کو حال چال پوچھیں۔ جی پچھلے دنوں میں جاوید رانا صاحب بھی آیا، جی جی جج مظفر صاحب بھی آیا، جی جی افتخار صاحب 2 بار آ چکے ہیں، ماشاء ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے ہماری سرجوری کے اندر جڑو انہوں کو نہ آیا ہوا ہے۔ میں تو ماسٹر صاحب یہ بھی سنیا کہ جنہیں اوپر جڑی محبوبہ مفتی تک اور بڑی جنہیں ہائی کمان کی جی لیڈرشپ ہے وہ بھی انہوں کو تشریف لایا جی جی ہاں، بہت بار ایک بار محبوبہ مفتی رجوری وزٹ کیو انہوں نے، اور انہوں نے کسی نے میسج کیو کہ میں انہوں نے ملنا ہے، اچھا میں انہوں کو کافی نام سنے اور تم انہوں نے بلا لیا، اچھا اور جلے کار فون آئے جلے وہ لینڈ لائن فون میں تھا اچھا WLL کا، ہاں جی انہوں نے کیوں جی وہ بیمار ہیں، اچھا اور محبوبہ مفتی اس ٹائم اتو آن گئی پوچھلی کار، اچھا اس بنا اور کہ وہ اگر نہیں آ سکتے ہم ہی چلیں کول پوچھوں گی کہ یہ اتنا بڑا قیمتی اور اتنی اہم شخصیات ہیں کہ جنہیں خدمات جڑی قوم واسطے کی گئی ہیں وہ بھلائی نہیں جا سکتی، لہذا بہتر جو ہے کہ اگر ہم انہوں نے ملاقات نہیں کر سکتا جنہیں وہ خود اتنی آ سکتا تو ہم خود انہوں کو لے چل گیا آگے بھی۔ اور باقی آج کا دور میں سوشل ایکٹیوسٹ تم نا ایک پتھر پٹیں گا نا تم جی جی ہاں تو 10 سوشل ایکٹیوسٹ مل جائے گا، جی جی لیکن ایکٹیویزم کو جڑو رول ہے نا، جی ہاں ایکٹیوسٹ کو ایک رول جڑو ہے وہ انہوں نے نبھایا ہوا ہے، کیا بات ہے سر، بہت سخت خدمات ہیں، بغیر کسی کریڈٹ تو، اچھا بغیر کسی لالچ تو، جی جی جڑی اپنا لوگوں کی سیوا کی ہاں جی اس سے وجہ نال انہوں نے نام کمائے، اور جتنا بھی ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بھی آج کو تم نے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، جی جی سوشل ایکٹیوسٹ نہ پارٹی نہ جڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جی سر وہ انڈیویجولی کام کر سکے، بے وہ شک پبلک واسطے کام کر سکے، جی اور جی انہوں نے وہ ایگزامپل سیٹ کی ہے۔ سارو یہ انٹرویو کے تھرو یہ کہنا چاہوں کہ انہوں لوگوں نے بھی اسے نقش و قدم پر چلنا چاہیے جی جی کہ 100 سال تو بعد بھی تم نے کو یاد کرے اور تھارا کول پجے، صحیح بات آج انہوں کی یاداشت نہیں ہے یا لگیسی یہ نہیں، ہاں، لیکن اچیومنٹ جڑی ہیں انہوں کی ساری دنیا جانے بخوبی،
क्या बात। जितनो हूँ उन्हों को पोतो इन्हों का बारे में सुनते रहो, जी, कुछ जी। चीज़ में देखी भी, जी। क्योंकि मेरी भी उम्र कोई ज़्यादा इतनी जी नहीं है, तो थोड़ा जो अंकल और भी इस पर रोशनी पाएगा कि माशाल्लाह। इन्होंने के देखो, क्या क्या स्ट्रगल देखी। क्या बात क्योंकि है। एक बार हमारा एक अंकल ही है, उन्होंने आर्मी उठा के ले आई पूछताछ वास्ते, अच्छा। तो ये आ गया रोड के पीछे खड़ा हो गया, जी जी। और खड़ा हो गया, इन्होंने क्यों ले जा नहीं सकता था, अच्छा उतारो इतने थले, अच्छा, तो इससे ही करवाया था, एकदम वॉलंटियर हो गए। वॉलंटियर हो गया। अच्छा। और इन्होंने मैन पावर की जरूरत नहीं थी जी, जी। कि मेरा नाल 50 बंदो खड़ो बैगो तो हूँ अगे जाऊंगी ना, हाँ, ये अच्छा। कला ही खड़ा हो जाए। खुद इतना दबंग। हाँ, अच्छा। और लीडरशिप वही आई है क्या बात कि है। तुमने परवाह नहीं करनी कि थारे नाल कोई है या नहीं है। जी जी। तो इसी वजह नाल हम भी सोचा कि कोई 10% हमारे अंदर भी कुछ माशाल्लाह। इन्हों की वो असर नज़र आवे, क्या लेकिन बात लगा वहाँ कोशिश में देखा आगे के इंशाअल्लाह ताला मारना जनाब। नाज़रीन कराम, माइक केसरी का पोता मास्टर शौकत चौहान साहब मौजूद था, जी इन्हों की खिदमात के उपर रोशनी डाल रहा था, और इन्होंने किस अंदाज नाल लोगों की खिदमत करी है, और किस अंदाज नाल अगर लोगों ने टार्चर या लोगों की परेशानी वे थी, चाहे फौज करे थी या किसी वजह तो उन्होंने ज़रूरत पै थी, तो भी उन्होंने किस तरह खिदमत करी था, और किस तरह बेहतरीन अंदाज नाल एक खिदमत कर गए इन्होंने, तो इस दुनिया के अंदर एक नाम कमाया, और वो भी रियल और एक ईमानदारी नाल अल्लाह की रज़ा वास्ते करियो, खिदमत खल्क की नीयत ना करियो। इसके अंदर जिन्हें कोई 1% क्या कोई ऐसा गुमान भी नहीं किया जा सकता कि इन्होंने उन्होंने को कोई जिन्हें उसका बदला का बगार ली हुआ है या कोई पैसों लिया हुआ है या कोई एक उम्मीद रखी हुई है जिस कि जिन्हें मौजूदा दौर में लीडरशिप बैकिंग हमने वोट लवेंगा या हमारे एक ना रोशन होगा। मैं खुदा की रज़ा वास्ते है, और या सोचो इन्होंने कि या मखलूक अगर परेशान है तो अगर इन परेशान हाल लोगों की खिदमत करूँ तो यो मेरे वास्ते एक बहुत बड़ो बायस फ़ख्र है और बहुत बड़ी बात है। तो इसी बात हम आगे बताता हूँ। हमारा वालदार साहब मौजूद है। वालदार जी कहना था मेरा नाम जनाब सिकंदर हुसैन है। जनाब हमारा मौजूद है सिकंदर हुसैन वालदार साहब। तो ये दसेंगा इनकी वालदा ही माजदा मौजूद हैं, तो हम इन्हें पूछांगा कि इनकी खिदमात के ऊपर कोई तमी रोशनी डालो। जनाब और सब तो पहले तो थारो बहुत बहुत शुक्रिया जरा तुम इस दूरदार एरिया में खासकर इस बॉर्डर का एरिया में तुम इत आया और तुमने सुने और तुम आया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जज़ाकल्लाह। मेरी वालदा है जी जी। और इनकी तकरीबन 100 साल तो ऊपर ही लगभग उम्र है, जी जी। और ये ना इन्हों को केसर भी है लेकिन माई केसरी का नाम तो ये मशहूर है। जी सर। मेरी तकरीबन 60 साल एज है माशाल्लाह। और 40 साल मैं अपनी होश हवाश में जितना मैं इन्ना अपनी वालदा का हथ मैं नौकरी ज्वाइन की। जी जी। तकरीबन हमारी फैमिली का इस टाइम 10-11 आदमी ऐसा जरा इन्ना की देन नाल और इन्ना की कोशिश नाल हम नौकरी सर्विस कर रहे हैं। माशाल्लाह ताला। हालात ना देखा कुछ अरसा 90 तो बाद जितना हालात इस एरिया बॉर्डर एरिया का बनया उसने बहुत फेस किया इन्होंने इंडिविजुअल तौर पर, जी जी। और आज ये थोड़ा सेहत इन्हों की नासाज है जिसकी वजह नाल ये थोड़ा ऊंचा भी सुने तो गल नहीं कर सकता, लेकिन अपना दौर में जिन जड़ा लोग इन्हों को बैठा जी जी। मदन लाल शर्मा पहली बार MP बनया वे आया इन्होंने मिल वास्ते। अच्छा। महबूबा मुफ्ती साहिबा वो इन्होंने रात 9 बजे मिलने वास्ते आया, उस टाइम श्रीनगर डिप्टी थो जी। और मिलना इतू मैसेज गयो कि बॉर्डर एरिया में 9:30 रात का हो गया, तुम किसी तरह मैसेज कर गए, उन्होंने यह गल कहो कि तुम इतू चला जाओ। जी इतू जान तो बाद महबूबा मुफ्ती साहब ने उसकी पार्टी बासरदे इकदार आई, जी। फिर भी हम इन्होंने मैं इन्होंने क्यों भी कि चलो इस टाइम थारो टाइम है चलो मिलो, लेकिन इन्होंने वारो नहीं समझो कि नहीं ठीक है उनकी कोशिश है वे कामयाब हो गया, ठीक है मुलाकात। इन्होंने कदे किसी चीज़ को तमा नहीं कियो जी हाँ। कि मिना इन्ना को जान को कुछ मिलेगो या नहीं मिलेगो, जी लिहाजा इन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देखियो। जी। 1947 तो लैके 1965 1971 फिर आज वो संदूर जड़ो ऑपरेशन हुआ, अच्छा। इन्होंने इससे एरिया में ये सारा हालात देखा अपनी नज़रें। जी जी। और हम इन्होंने 5 बेटा और 4 बेटियाँ, जी जी। लेकिन इन्हों की फैमिली अगर देखी जाए हम चाचे जात या जितने भी मारी अगे लड़की 5वीं पीढ़ी मारी अगे चला गया, जी जी। लगभग 400 तो ऊपर फैमिली है इन्हों की इस टाइम। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, और जरा हमारा वाल साहब था 2013 में उनकी डेथ हो जी। गई और वे 105 साल की उम्र में जाके उनकी वफात हो गई। अच्छा काफ़ी तो उम्र इंशाल्लाह इन्हों की फैमिली में इस वक्त पूरी फैमिली में अल्लाह ताला ने बड़ो अल्लाह को करम किया हुआ है, जी जी। और बिल्कुल सही सलामत फैमिली है। 400 वो आदमी है, जी हाँ। लेकिन थारो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इस एरिया में जी जी। टाइम कट के आया, और थारो बहुत बहुत शुक्रिया
अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। और इस तरह का सोशल एक्टिविटी जितना भी हैं उन्होंने चाहिए कि दूर दराज एरिया का जरा बुजुर्ग लोग हैं हो सका इन्हों की उम्र तो भी ज़्यादा लोग में जी जी उन्होंने एक तलाश करके जाना जी। चाहिए और लोगों का सामने उन लोगों की चंद ख्यालात सामने आना चाहिए। बेशक बेशक। बहुत बहुत वालदार जी एक बात थोड़ी यह चाहूँगा कि बुजुर्गों की देन और बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा में अल्लाह ताला दुनिया दा आखिरत में इंसान कामयाब करे। जी, जी, उस कामयाबी का पस मंज़र में थोड़ी जी आम गल पूछना चाहूँगा बिल्कुल। कि इन्हों जितना पिछले खानदान नाल या खानवाद वाला तलक रखने वाला बहुत सारा जिन्हें अज जरा लोग हैं वे जिन्हें नेशनल लेवल पर जिन्हें सर्विसेज गवर्नमेंट में करें, बहुत सारा जुडिशरी में जिन्हें करें, बहुत सारा जिन्हें ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारा जिन्हें लीडरशिप में उन्होंने को चंद ना तुम दस जी सकें। जी जी हम इनका ब्रदर है हमारा मामा लगे लाल मोहम्मद साबर। वे पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाल जेल में था जब शेख अब्दुल्ला अच्छा। महाराजा का दौर पर जेल में था। अच्छा वे हमारा मामा भी शेख अब्दुल्ला साहब नाल जेल में था। अच्छा जब वो रिलीज हुआ शेख अब्दुल्ला साहब और उन्होंने जम्मू कश्मीर के बीच एक जमहूरियत लाने की कोशिश की तो उस दौरान में जरा हमारा मामा था जी। वे भी रिलीज हो गया। अच्छा और फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का नाल उन्होंने जेल के अंदर कुछ वक्त जड़ो गुजारे थो जी जी वो उन्होंने याद रहो और उन्होंने अपना नाल नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ले आया अपना साथ। जी पहली दफ़ा वे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिनिस्टर बनया जी हाँ और बड़ी देर वे मिनिस्टर रहा। जी हाँ उस तो बाद जनाब अली हमारी फैमिली का हमारी मदर का सक्का पितरिया जरा महमूद साहब जरा जज इस टाइम छुपाई है सेशन जज। सेशन जज छुपाई हैं अच्छा वे इन्हों का पितरिया है और उन्होंने साहबजाती कल IAS सिलेक्ट हुई है। जी माशाल्लाह और वो तकरीबन तमने भी पता लगा वो न्यूज़ में तमने भी देखे हुआ है वो। माशाल्लाह और उन्होंने को हमने बाज़ाब्ता जिसला उन्होंने दौरो यहाँ कियो वो भी हमने वीडियो पाई हुई हैं। जी जी तो तकरीबन इन्हों की फैमिली का गेस्टर नॉन गेस्टर दो पितरिया इन्हों का एक्शन रिटायर हुआ है माशाल्लाह और डॉक्टर भी हैं इंशाल्लाह। नायदा डॉक्टर है इनकी एक दोती है वह डॉक्टर है। माशाल्लाह ताला। तो तकरीबन हमारा जीजा जी हेडमास्टर है। फैमिली इनकी जितनी भी फैमिली है वे सारा एजुकेटेड हैं और नॉन गेस्टेड और गेस्टेड ही हैं। जी जी हाँ माशाल्लाह तकरीबन नॉन गेस्टेड और गेस्टेड ही हैं मैक्सिमम। जी जी तो अल्लाह को बहुत बड़ा कर्म है इन्होंने जो जो फेस किया वो हम सोच नहीं सकता। सही बात। ऐसा ऐसा हालात था कि आर्मी पॉइंट ऑफ डेथ पर ले जाए थी बंदा ना उस दौर में चाह गए अच्छा। क्योंकि मिलिटेंसी बहुत थी और इन्होंने आर्मी नाल बहुत फेस कर गया उन्होंने लोगों ने जान तो भी बचाए और वे लोग अज भी मौजूद हैं। जी जी और कई लोगों का बॉर्डर एरिया मिलिटेंसी की वजह ना लोगों का मकान बंद कर दिया गया। जी जी हाले में हमारे को ये ऊपर 4 मकान है वे इन्होंने खिलाया अच्छा कि ये मकान लोग 40-50 साल तो रह रहे हैं आज तक मिलिटेंसी की वजह ने इन्होंने बेदखल नहीं कर सकता। जी जी ते अल्लाह ताला बड़ो करम रहो आज भी इन्ना वो सायो हमारा सिर पर है और माशाल्लाह। तुम भी दुआ गौर करो कि इंशाअल्लाह। चंद जितना दिन अल्लाह ताला ने नई जिंदगी लिखी है हमारा पर इन्ना वो सायो रहे। आमीन। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया था। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन कराम हमारे नाल माइक केसी और आज मौजूद था इनका साहबजादा वालदार और ने गलबात करी इनका पोता मास्टर शौकत चौहान साहब था जिन्होंने इनकी ज़िंदगी और ज़िंदगी जी खिदमात इन्होंने करी पब्लिक की वे भी उसके ऊपर रोशनी पाई। तो नाज़रीन तुमने माई साहब वास्ते दुआ करनी कि अल्लाह ताला ने सेहत और सलामती ता फरमावे तो दुनिया तो जान को वक्त वे ईमान की सलामती ता फरमावे। तो तुमने आज को हमारा प्रोग्राम कैसा लगो तुमने कमेंट करके ज़रूर दसनो है और तुम कितों कितों प्रोग्राम देखें वो भी दसनो। और थारे को लेकर कोई इस तरह को बुजुर्गों को कोई सरमाया मौजूद है बुजुर्ग बड़ी उम्र का मौजूद है या उन्हें कोई खिदमात हैं तो वे भी तुमने हमने दसनी हम ज़रूर उस खिदमात ना लोगों तो नहीं सोशल मीडिया का जरिए पहुँचावागा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।